and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Aamir Khan busts rumors claiming he divorced Kiran Rao due to alleged relationship. Janhvi Kapoor pokes fun at Khushi Kapoor as the latter goofs around at the airport terminal. Ibrahim Ali Khan gets injured while playing football. आमिर खान ने लाइफ में किसी और के आने पर नहीं दिया किरण राव को डिवोर्स। इतना ही नहीं, फर्स्ट वाइफ रीना से डिवोर्स के वक्त उनके और किरण राव के बीच नहीं थी नजदीकियां। वेल, लास्ट ईयर आमिर खान और किरण राव के डिवोर्स के बाद से जो कुछ सवाल लोगों की गॉसिप में तैर रहे थे, आमिर खान ने उनका एक एक कर जवाब दे दिया है। साथ ही रिवील किया है किरण राव से उन्हें मिले बर्थडे गिफ्ट का हर एक डिटेल। आमिर खान और किरण राव ने लास्ट ईयर सेपरेशन का ऐलान किया था, जिसके बाद से रूमर्स थे कि उन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहने की वजह से किरण को डिवोर्स दिया। लेकिन रिसेंटली आमिर खान ने इस मामले में एक बड़ा रेवलेशन किया है। टेक अ लुक। आमिर खान ने एक रीसेंट इंटरव्यू में रिवील कर दिया है कि वो ना तो अपने पहले डिवोर्स के वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे और ना ही किरण राव से डिवोर्स लेने के पीछे रहा है ये रीजन। आमिर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि when Reena and I got separated, there was no one in my life. A lot of people think that Kiran and I met before my divorce from Reena, but it's not true. Kiran and I had met, but we didn't really know each other, and we became friends much later. और इस बार भी जब आमिर खान और किरण राव के सेपरेशन का रीजन किसी सीक्रेट रिलेशनशिप को बताया जा रहा है, तो आमिर खान ने कह दिया है, There was no other person in my life. अपनी इस बात को सपोर्ट करते हुए आमिर खान ने ये भी बताया कि रीना ही नहीं, किरण के साथ अब भी उनका फैमिली जैसा एसोसिएशन है। आमिर ने कहा, Kiran and I love each other so much. We have a lot of respect and love for one another. But people don't get this. And I accept it because we don't see it usually. Actually, Kiran and I realize that we like each other so much and consider one another family in the truest sense. Kiran and I are actually families. But our relationship of husband and wife experienced a certain change and we wanted to respect the institution of marriage. However, we are always going to be by each other's side. We are working together. We live close by. But we are no longer husband and wife and that's why we decided to call it quits. इतना ही नहीं, आमिर खान को किरण राव से उनकी लाइफ का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट भी मिला है और इस बर्थडे गिफ्ट के साथ वो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमिर ने कहा, Kiran was away for a month busy with a shoot in Bhopal and she returned a few days ago. So we were sitting together and I generally asked her, Kiran, you know me the best. Can you tell me such things? Given that I am going through a phase where I'm trying to improve as a person, trying to focus on my weaknesses. Can you tell me a few things that you feel are my weaknesses and drawbacks on which I should focus on? She gave me a list of 10 to 12 points that I sat and wrote as well. So that was my life's best birthday gift. Well, we hope आमिर को किरण से उनकी पर्सनालिटी की वीकनेस की जो लिस्ट मिली है, उन्हें दूर करके आमिर खान एज अ पर्सन खुद को जरूर इम्प्रूव कर पाएंगे। विजी सीधा करो। सिबलिंग्स के बीच कैसी लेग पुलिंग होती है, इसका ताजा एग्जाम्पल देखने मिला जब मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई जानवी कपूर और खुशी कपूर। जहां बोनी कपूर और लेट श्रीदेवी की डॉटर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे देखने के बाद जानवी कपूर के फैंस ही नहीं बल्कि नेटिजन्स को भी काफी मजा आ रहा है। विजी सीधा करो।
जानवी कपूर के सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी सिस्टर खुशी कपूर का एक गूफी वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को देखने के बाद फैंस और नेटिजन्स को यकीन होता दिख रहा है कि उनकी फैमिलीज की तरह ही सेलिब्रिटीज भी अपनी सिबलिंग्स का लेग पुलिंग का कोई मौका नहीं छोड़ते। टेक अ लुक। अपनी टायरिंग जर्नी के बाद जानवी कपूर की सिस्टर खुशी कपूर सूटकेस पर सवार क्या नजर आई, हंगामा हो गया। और आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि ये विजुअल्स पैप्स ने नहीं बल्कि खुद जानवी कपूर ने कैप्चर किए हैं। वेल यस, खुशी इतनी थकी नजर आ रही है कि वॉक करने की जगह खुशी सूटकेस पर सवार हो गई और उन्हें कोई पीछे से धक्का देता नजर आया। लेकिन जैसा ही हम सब की फैमिलीज में होता है, सिबलिंग ऐसे गूफी मोमेंट्स कैप्चर करने से बाज नहीं आते। तो खुशी की सिस्टर जानवी कपूर भला ये मौका कैसे जाने देती? बस जानवी कपूर ने खुशी की लेग पुलिंग करते हुए अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर दिया उनका ये गूफी वीडियो और इसे शेयर करते हुए कैप्शन दिया, खुशी forgot how to use her spidery long legs. विजी सीधा करो। On the professional front, Khushi will be making her debut in a Zoya Akhtar directorial, adapted from the international comic book series Archie. She will feature alongside Suhana Khan and Agastya Nanda. वहीं जानवी कपूर के लाइंड अप फिल्म प्रोजेक्ट्स भी बेहद एक्साइटिंग है। गुड लक जेरी और दोस्ताना 2 के अलावा जानवी करण जौहर की तख्त का भी पार्ट है, जिसमें करीना कपूर और विकी कौशल, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर के अलावा अनिल कपूर भी नजर आएंगे। विजी सीधा करो। हिंदी हमारी राजभाषा है। कविता भाषा का सबसे सुंदर रूप है और कहते हैं कि किसी भी भाषा को यदि आसानी से सीखना हो तो कविता द्वारा सीखो। आराध्या बच्चन की शुद्ध हिंदी सबको सरप्राइज कर रही है। रिसेंटली ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की डॉटर आराध्या के पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वाली वीडियो ने धूम मचाई थी और अब आराध्या का एक नया वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो स्कूल यूनिफॉर्म में शुद्ध हिंदी इतने स्वीटली बोलती नजर आ रही है कि हर एक सुनने वाला आराध्या पर प्यार लुटा रहा है। बॉलीवुड में जब भी बात होती है शुद्ध हिंदी की तो सबकी जुबान पर आता है बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का नाम। लेकिन अब इस मामले में उनकी फैमिली की लेगेसी एक और स्टेप आगे जाती नजर आ रही है, क्योंकि बिग बीज ग्रैंड डॉटर और ऐश अभिषेक की डॉटर आराध्या बच्चन का एक वीडियो वायरल हो गया है। आराध्या के इस वीडियो पर फैंस और उनके फादर अभिषेक ने कैसे किया रिएक्ट, चेक इट आउट। आराध्या का ये सुपर क्यूट अवतार आजकल फैंस का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में आराध्या बच्चन स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही है और वीडियो में आराध्या के पीछे नजर आ रहा बैकग्राउंड इंडिकेट कर रहा है कि ये वीडियो आराध्या के स्कूल में हिंदी एलोक्यूशन कंपटीशन का है, जिसमें आराध्या कह रही है कि अगर कोई हिंदी सीखना चाहता है तो हिंदी पोइट्री ही है द बेस्ट वे टू लर्न हिंदी। हिंदी के मधुरम शब्दों की जब लड़ी पिरोई जाती है तब कवि की वाणी से एक मीठी कविता बन जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। कविता भाषा का सबसे सुंदर रूप है और कहते हैं कि किसी भी भाषा को यदि आसानी से सीखना हो तो कविता द्वारा सीखो। तो इसी कविता की मिठास लेकर हम प्राइमरी के बच्चे आपके सामने सुंदर कविताएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है इन कविताओं में आपको हिंदी के प्रति हम बच्चों का प्यार अवश्य दिखाई देगा। वेल, अब तक बॉलीवुड में इतनी प्यारी हिंदी बोलने के लिए बिग बी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन इस वीडियो को देखकर फैंस क्यूट आराध्या पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर
लेट हरिवंश राय बच्चन और ग्रैंडफादर अमिताभ बच्चन से मिली लेगेसी को बखूबी आगे बढ़ाया है। इसलिए इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, द लेगेसी कंटिन्यूज। आराध्या का अपनी मदर टंग के लिए ये प्यार देखकर जब लोगों को इतना प्यार आ रहा है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के लिए होगा ये कितना प्राउड मोमेंट। अभिषेक बच्चन ने तो लोगों से मिले इस प्यार के लिए हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड भी दिखाया है। बता दें कि आराध्या बच्चन सिर्फ 10 साल की है। 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या की वेडिंग के 4 साल बाद ईयर 2011 में आराध्या का जन्म हुआ था और ये वीडियोस खुद साबित कर रहे हैं कि उन्हें बच्चन फैमिली से मिल रही है कैसी अपब्रिंगिंग और संस्कार। सैफ अली खान एंड अमृता सिंह सन इब्राहिम अली फुटबॉल खेलते हुए इंजर्ड हो गए हैं। साथ खेल रहे अभिषेक बच्चन परेशान नजर आ रहे हैं और आयुष्मान खुराना के यंग ब्रदर अपार शक्ति खुराना पेन से तड़पते इब्राहिम अली को कंफर्टेबल करते भी नजर आए, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। संडे को जुहू मुंबई में फुटबॉल खेलने जुटे कुछ बॉलीवुड स्टार्स, लेकिन फुटबॉल खेलते हुए सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम इंजर्ड हो गए। इब्राहिम के इंजर्ड होने की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई है, जिनमें इब्राहिम दर्द से बेहाल नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक पिक्चर में नजर आ रहा है कि पेन होने पर इंस्ट्रक्टर कैसे इब्राहिम को इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए उनके लेग्स को मूव करते दिख रहे हैं। इसी पिक्चर में आयुष्मान खुराना के ब्रदर अपार शक्ति खुराना इब्राहिम को कंफर्टेबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस सब के बाद भी जब इब्राहिम को रिलीफ नहीं मिली तो उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। बता दें कि इब्राहिम अली की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और उनके फैंस बॉलीवुड डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इब्राहिम अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले फिलहाल करण जौहर को रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी में असिस्ट कर रहे हैं। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म में धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी भी नजर आएंगे। वहीं इब्राहिम की सिस्टर सारा अली खान पहले ही केदारनाथ से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी है और अतरंगी स्टार सारा अली खान अपने सोशल मीडिया पोस्ट से अक्सर लाइमलाइट बटोरती नजर आती है। रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पिक्चर्स और वीडियोस की एक सीरीज फैंस के साथ शेयर की है, जिसमें वो लेट नाइट से लेकर अर्ली मॉर्निंग के साथ साथ अपने रेगुलर रूटीन की झलक सबको दिखा रही है। और सारा की शेयर की हुई पिक्चर्स और इन वीडियोस को देखकर तो यही लग रहा है कि उनके ब्रदर इब्राहिम अपनी इंजरी से उबर आए हैं, क्योंकि सारा का अपनी मॉम और ब्रदर इब्राहिम के लिए प्यार देखकर तो नहीं लगता है कि भाई के सीरियसली इंजर्ड होने पर भी सोशल मीडिया पर आकर कुछ पोस्ट करेंगी। शाहरुख खान की कमबैक फिल्म को डायरेक्ट करने का ऑनर भी है और जिम्मेदारी भी, सेज पठान डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ पहली बार शाहरुख के साथ काम कर रहे हैं और रख रहे हैं फूंक फूंक के कदम। शाहरुख खान हैज बीन अवे फ्रॉम द बिग स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, लेकिन वो आज भी हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक। किंग खान की फिल्म पठान फाइनली अनाउंस हो चुकी है और पूरा यूनिट फिलहाल स्पेन में शूट कर रहा है। While Shahrukh himself must be feeling the pressure of his comeback, उनसे भी ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जिनकी जिम्मेदारी है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म डिलीवर करना।
Speaking about how he is feeling about directing this highly anticipated project, Siddharth ने एक इंटरव्यू में कहा, Pathaan has been designed as the biggest action spectacle from the Hindi film industry. We have the most loved superstar of our generation with us. It is an honor and a responsibility for us. So we can't make a misstep at any point. We ensured that Pathaan's date announcement video gave bang for the buck to the audience. SRK के साथ फिल्म में है सुपरस्टार्स दीपिका पादुकोण और जॉन एब्राहम, जो इस फिल्म में 4 चांद लगाएंगे. Speaking about working with these good-looking actors, सिद्धार्थ ने कहा कि दीपिका और शाहरुख इससे पहले भी 2 बड़े हिट्स डिलीवर कर चुके हैं, so including her in the film makes it more exciting. जॉन एब्राहम भी एक्शन जॉनर के अनडिस्प्यूटेड स्टार है. सिद्धार्थ ने कहा, so there is pressure to deliver a crackling product. I love the pressure and the anticipation. SRK has his calendar completely blocked this year. स्पेन में पठान का शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद शाहरुख अगले महीने राजकुमार हिरानी की फिल्म पे काम शुरू करेंगे. After shooting for a month with Raju Hirani, SRK will resume work on Atali's film before flying abroad for the next schedule of Raju's film. इसके बाद वो लौटेंगे इंडिया अटली की फिल्म का आखिरी शूट स्केड्यूल पूरा करने, before flying out again for the last schedule of Raju Hirani's film. अगर सब कुछ सही गया तो इस साल शाहरुख तीनों फिल्मों पे काम खत्म कर देंगे. Here's hoping कि 2023 में हमें SRK की तीनों फिल्में देखने को मिले and we have a very happy 2023. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. बिग स्क्रीन्स पे बड़े मूवी स्टार्स अपने जलवे दिखाते हैं, लेकिन स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स भी अपने एंटरटेनिंग और कंट्रोवर्शियल हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन करते हैं. So who are the movers and shakers today from the world of entertainment and social media? Let's find out. उर्फी जावेद भी आजकल क्या क्या कर जाती हैं. अब आप खुद ही देख लीजिए कि करजत में उन्होंने क्या किया. एक स्वीट से कन्फेशन के साथ उन्होंने ये वीडियो फैंस के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है और कैप्शन दिया है, नॉट सो गुड विद ट्रेंड्स. 2 पीस हो या फिर रिवीलिंग टॉप्स, उर्फी जावेद हर एक अटायर को कॉन्फिडेंटली कैरी करती नजर आ जाती हैं. और शायद इस बार भी उन्होंने अपने फैंस के लिए ऐसी ही विजुअल ट्रीट पोस्ट की है. रिसेंटली एक अवार्ड नाइट में शमिता शेट्टी को बिग बॉस 15 के लिए मिली ये ट्रॉफी रही बड़ी हाईलाइट. ट्रॉफी के साथ पोज करते हुए शमिता शेट्टी की कई पिक्स सोशल मीडिया पर भी आईं. लेकिन ये पिक्चर है थोड़ी स्पेशल क्योंकि इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद राकेश बापट ने शमिता शेट्टी को चीयर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. दोनों सेलेब्स के ब्रेकअप रूमर्स रिसेंटली छाए रहे थे. एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया था कि शमिता शेट्टी राकेश बापट को पुणे से वापस मुंबई लौटने के लिए जोर दे रही थी और ये बात दोनों के ब्रेकअप का रीजन बन गई. लेकिन हाल ही में शमिता शेट्टी और राकेश बापट ने न सिर्फ ऐसे रूमर्स पर बिलीव न करने की अपील की थी, बल्कि अब राकेश बापट शमिता शेट्टी के लिए चीयरलीडर बनकर सामने आ गए हैं. स्टार्स भले सबको टैंट्रम्स दिखा जाते हों, पर उन्हें भी सैलून वालों के टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं. गौहर खान भी शायद अपने फैंस को यही बता रही हैं. रिसेंटली उन्होंने फैंस के साथ शेयर किया है ये वीडियो जिसमें वो सैलून गाय की मिमिक्री करती हुई नजर आ रही हैं. और अपने इस वीडियो को गौहर खान ने कैप्शन दिया है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हा ऑल शूट एंड नो सेल्फ केयर टाइम. एक खूबसूरत स्टेज पर अक्षय कुमार और कृति सैनन की परफॉर्मेंस बन रही है बड़ी हाईलाइट. इस ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस में अक्षय कुमार और कृति सैनन अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे के ट्रैक मेरी जान पर रोमांटिकली डांस करते नजर आ रहे हैं. जहां कृति सैनन स्पॉटेड आइसी ब्लू कलर ब्यूटीफुल साड़ी, तो वहीं अक्षय कुमार हैं ब्लैक कलर के कैजुअल अटायर में. लेकिन इस रोमांटिक सॉन्ग पर दोनों सक्सेसफुली अपनी वही ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रिक्रिएट करते दिखे, जो सिल्वर स्क्रीन पर फैंस को जल्द नजर आएगी. बता दें, अक्षय कुमार और कृति सैनन की ये रोमांटिक परफॉर्मेंस हुनरबाज देश की शान शो में दिखाई दी और शो के जजेस में से करण जौहर इस रोमांटिक सॉन्ग पर अक्षय कुमार और कृति सैनन की परफॉर्मेंस देखकर दंग रह गए. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys please stay safe.